Moratatpali larasa tomara kuchare Ataiva e rupa deki luntumare. Synonyms. Mora, my. Sri Chaitanya Mahaprabhu confirmed, all the truths about my pastimes and knowledge are within your knowledge. Therefore, I have shown this form to you. श्री चैतन्य महाप्रभु ने पुष्टि की, मेरी लीलाओं तथा रसों का सारा तत्व सत्य आपको ज्ञात है, इसीलिए मैंने आपको यह स्वरूप दिखाया है। Shloka 287. Gauranga nai mora radanga sparshana Gopendra sutta vinateo nasparshe anyajana. Actually, my body does not have a fair complexion. It only appears so because it has touched the body of Srimati Radharani. However, she does not touch anyone but the son of Nanda Maharaj. वास्तव में मेरा शरीर गौर वर्ण का नहीं है, यह तो श्रीमती राधा रानी के शरीर का स्पर्श करने से ऐसा प्रतीत होता है, किंतु राधा रानी नंद महाराज के पुत्र के अतिरिक्त अन्य किसी का स्पर्श नहीं करती। Shloka 288. Tara Bhave Bhavita Kari Atma Mana Tabe Nija Madhurya Kari Ashwadhana Tara Bhave Bhavita Kori Atma Mana Tabe Nija Madhurya Kari Ashwadhana Tara Bhave Bhavita Kori Atma Mana Tabe Nija Madhurya Kari Ashwadhana Tare Bhave Bhavita Kori Atma Mana Tabe Nija Madhurya Kari Ashwadhana Managees. Synonyms. Tara of Srimati Radharani. Bhave in the ecstasy. Bhavita enlightened. Kari making. Atmamana body and mind. Tabe Nija Madhurya, my own transcendental humor.
Kari, I do. Ashwadana, tasting. Translation and purport by Srila Prabhupada. I have now converted my body and mind to the ecstasy of Srimati Radharani. Thus I'm tasting my own personal sweetness in that form. अब मैंने अपने शरीर तथा मन को श्रीमती राधा रानी के भाव में रख लिया है। इस तरह मैं अपने ही माधुर्य का आस्वादन उस रूप में कर रहा हूँ। Purport. Gaurasundar here informed Sri Ramananda Rai. My dear Ramananda Rai, you were actually seeing a separate person with a fair complexion body. Actually, I'm not fair. Being Sri Krishna, the son of Nanda Maharaj, I am blackish. But when I come in contact, touch with Srimati Radharani, I become fair complexion externally. और सुंदर ने यहाँ श्री रामानंद राय को बताया, आप वास्तव में गौर वर्ण वाले किसी भिन्न व्यक्ति को देख रहे थे। वास्तव में मैं गौर वर्ण का नहीं हूँ। मैं नंद महाराज का पुत्र श्री कृष्ण होने के कारण श्याम हूँ, किंतु श्रीमती राधा रानी के संपर्क में आते ही मैं बाहर से गौर वर्ण का हो जाता हूँ। Srimati Radharani does not touch the body of anyone but Krishna. श्रीमती राधा रानी कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी के शरीर का स्पर्श नहीं करती। I taste my own transcendental teachers by accepting the complexion of Srimati Radharani. मैं श्रीमती राधा रानी का वर्ण स्वीकार करके अपने ही दिव्य स्वरूप का आस्वादन करता हूँ। Without Radharani, one cannot taste the transcendental pleasure of Krishna's conjugal love. राधा रानी के बिना कृष्ण के माधुर्य रस के दिव्य आनंद का आस्वादन नहीं किया जा सकता। In this regard, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur comments on Prakriti Sahaja Sampradaya, which considers Krishna and Lord Chaitanya to possess different bodies. इस संबंध में श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्राकृतिक साहित्य संप्रदाय का टीका करते हैं, जो कृष्ण तथा भगवान चैतन्य को पृथक शरीर वाले मानते हैं। They misinterpret the words Gora Nahi Gora, text number 278. वे यहाँ श्लोक 287 में आए गौर अंग नहीं गौर शब्दों की गलत विवेचना करते हैं। From that verse and the present verse, we can understand Lord Chaitanya Mahaprabhu is not different from Krishna. उस श्लोक में तथा इस श्लोक में यह समझा जा सकता है कि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण से अभिन्न हैं। Both are the supreme personality of God in the form of Krishna. The Lord enjoys spiritual bliss and remains the shelter of all glories. Vishaya Vigraha. दोनों एक ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। कृष्ण के रूप में भगवान आध्यात्मिक आनंद का भोग करते हैं और समस्त भक्तों के आश्रय विषय विग्रह बने रहते हैं। And in his Gauranga feature, Krishna takes separation from Krishna in the ecstasy of Srimati Radharani. अपने गौरांग स्वरूप में कृष्ण श्रीमती राधा रानी के भाव में कृष्ण विरह का आस्वादन करते हैं। This ecstatic form is Sri Krishna Chaitanya. यह भाव से पूरित स्वरूप श्री कृष्ण चैतन्य है। Sri Krishna is always the transcendental reservoir of all pleasure, and he is technically called Dhira-lalita. श्री कृष्ण सदैव समस्त आनंद के दिव्य आकार हैं और धीर ललित कहलाते हैं। Srimati Radharani is the embodiment of transcendental energy. श्रीमती राधा रानी मूर्तिमंत आध्यात्मिक शक्ति है। Personified as ecstatic love for Krishna. जो साक्षात कृष्ण प्रेम है। Therefore, only Krishna can touch her. इसलिए केवल कृष्ण ही उनका स्पर्श कर सकते हैं। The Dhira-lalita aspect is not seen in any other form of the Lord, including Vishnu and Narayana. यह धीर ललित पक्ष भगवान के किसी अन्य रूप में ना तो विष्णु में ना नारायण में देखा जा सकता है। Srimati Radharani is therefore known as Govinda Nandini and Govinda Mohini, for he is the only source of transcendental pleasure for Sri Krishna and the only person who can enchant his mind. इसलिए श्रीमती राधा रानी गोविंद नंदिनी या गोविंद मोहिनी कहलाती हैं, क्योंकि वे ही कृष्ण के दिव्य आनंद की एकमात्र स्रोत है और वे ही ऐसी है जो उनके चित्त को हर सकती है।
Makaraya Kavitya, Nurvashana Nikavitya, Mahasayasya, Chaitanya Chandramanade Prabhupada, Jaladhara Shashvana, Shikashvara, Sahachara Kavamina, Krivanana Jisho, Natabara Chetavesho, Niva Pitamaradyo, Janatanahi, Toyana Krishnatosmi, Manjala Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare. So Lord Chaitanya Mahaprabhu reveals to Ramananda his sweetness. तो चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय के सामने अपने स्वरूप प्रकट करते हैं। It's described by Prabhupada that Chaitanya Mahaprabhu is much more beautiful than Krishna. इससे तात्पर्य बताया गया है कि चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण से बहुत ज़्यादा सुंदर है। Because Chaitanya Mahaprabhu includes Radharani also. क्योंकि चैतन्य महाप्रभु में श्रीमती राधा रानी भी है। And in these slokas in Bhakti Gita chapter 8, Lord Chaitanya tells Ramananda Rai the reason is that he appeared with the movie of Radharani. और इस भक्ति लीला के अध्याय में चैतन्य महाप्रभु रामानंद जी को बता रहे हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि मैं राधा रानी के भाव में प्रकट हुआ हूँ। And Krishna's Kaviraj is kindly given to us. और कृष्णदास कविराज गोस्वामी बड़े कृपा पूर्वक हमको ये बता रहे हैं। So that's nice. बहुत अच्छा है। So तो हम यहीं पे विराम देंगे। कल के भी बहुत प्रश्न हैं। हम अपना हरिनाम संकीर्तन में अपनी रुचि कैसे बढ़ा सकते हैं और संकीर्तन और जप बिना अपराधी कैसे कर सकते हैं? I mentioned this. मैं इसके बारे में पहले बता चुका हूँ। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर दो प्रकार की रुचि का वर्णन करते हैं। माधुर्य कमली के अध्याय 2 में That there are two kinds of taste. One is the exclusive elements and the other is non-exclusive. तो एक है कि जिसमें कि बहुत ही उत्कृष्ट रुचि है, दूसरी इतनी उत्कृष्ट रुचि नहीं है। So, exclusive elements, a lot of people have seen that. तो जो उत्कृष्ट रुचि है वो बहुत लोगों ने देखी हुई है। When we have nice beauties, nice photographs, it's easy to finish your house. तो जब हम बहुत सुंदर अचूक देखते हैं, उनका तस्वीर देखते हैं, Yeah, finish your rounds when you're tired. Finish your job. तो उससे रात का अंधेरा हो जाए, बारिश हो रही हो, आप सर्दी से काम रहे हो, उससे पहले का जब कर लिया कीजिए। So basically, that's the move. Get them done. तो वास्तव में ये भाव होना चाहिए कि इस जो हमारी सेवा है इसको हम जल्दी से कर लें। Satsuma Das Goswami was asked by his disciples about that. तो सतस्वरूप दास गोस्वामी जी के एक शिष्य ने उनसे पूछा, And he said that I promised Prabhupada that I'd get them done. We'll talk about it all later. Get them done. तो उन्होंने बताया कि प्रभुपाद जी ने बताया था मुझे कि इस सेवा को आप एक बार खत्म कर दें। So the non-exclusive elements of dedication. तो जो इतने उत्कृष्ट तत्व हैं, इसमें ज़्यादा सुंदर रुचि होती है। And one chance with Tulsi Rani to teach Bhakti today. और तुलसी महारानी के साथ जप करने में ज़्यादा हमारे चांसेस हैं कि हम अच्छे ढंग से जप कर सकते हैं, क्योंकि वो भक्ति प्रदान करती है। She may give, she may not give. It's up to her. वो रुचि दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, उनके ऊपर है। There is no guarantee. इसका कोई पूरी गारंटी नहीं है। There's only three things that are guaranteed. केवल 3 चीज़ों की गारंटी है। Death, taxes, and a lost computer.
तो तुलसी महारानी पे हम जो भी डाल सकते हैं कि आप हमें अपनी रुचि दीजिए। शास्त्रों में अपनी श्रद्धा कैसे बढ़ाएं? The definition of faith is described in Chaitanya Charitamrita. तो श्रद्धा की जो परिभाषा है चैतन्य चरितामृत में दी गई है। Faith means that simply by serving Krishna, everything is done nicely. इसका अर्थ ये है कि केवल कृष्ण की सेवा करके ही सारे मेरे कार्य पूर्ण हो गए। So, Shastras spoke about. तो शास्त्रों में श्रद्धा कैसे विकसित करें? शास्त्र हमारी मदद करेंगे। Then you develop faith. तो फिर हमारे शास्त्रों में श्रद्धा बढ़ेगी। Shastra doesn't help you out, then you would have no faith. अगर शास्त्र आपकी मदद नहीं करे श्रद्धा बढ़ाने में, तो इसका मतलब आपको बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं है। Why Krishna is mercy on the great. कृष्ण कार्तिक के मास में ही कृपा करो करते हैं, बाकी महीनों में कृपा करो नहीं करते। Krishna is mercy always. आप नहीं जानते कृष्ण हर महीने में अपनी कृपा मांगते हैं। It doesn't matter. Krishna gives more mercy when you really depend on him. और कृष्ण ज्यादा कृपा तब देंगे जब हम उन पर पूर्ण रूप से निर्भर होंगे। तो भगवद गीता का मैराथन आने वाला है, तो मैं कैसे भगवद गीता को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ूं और उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ूं। You have to live the books that have made you a guru. तो हमें जो किताबों जिन्होंने भक्त बने हैं उन्हीं किताबों को अपने जीवन में उतारना होगा। The problem is that BBT doesn't publish your favorite book all the time. बात यह है कि जो बीबीटी है, जो आपकी सबसे रुचि, जो सबसे अच्छी पुस्तक आपको लगती है, वो हर बार नहीं छापेगी। Sometimes book distributors put the books on your walking table, so they always have their favorite book. तो कई बार जो बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं अपनी किताबों को लॉक इन की में रख देते हैं। You can consider that. तो इसको आपको देखना पड़ेगा कि वो जो लॉक इन की में ना है, किताबें बाहर हैं। श्लोकों को कैसे याद करें और अपनी स्मरण शक्ति कैसे बढ़ाएं? Basically, it is necessity is the mother of invention. तो कहा जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। You need it, you get it. अगर आपको चाहिए तो आपको मिल जाएगी। Because Krishna is the source of remembrance, knowledge, and forgiveness. He mentions that in Bhagavad Gita, Krishna chapter 15, verse 50. और गीता के भगवद गीता के 15 अध्याय के 15 श्लोक में भगवान कहते हैं कि मैं ही स्मरण शक्ति देता हूँ, मैं ही भूलने की शक्ति देता हूँ। So you should have a good reason why Krishna should give it to you. तो आपके पास एक अच्छा कारण होना चाहिए कि कृष्ण आपको स्मरण शक्ति क्यों दें। So basically that's it. बस यही इसका एक बात है। When memorizing verses, that's it. तो श्लोकों को याद करने के लिए यही एक तथ्य है। And basically, you need it, you get it. अगर आपको आवश्यकता है तो आपको मिल जाएगी। And if you forget it, then you just chant a little bit more. और अगर आप इसको भूल जाते हैं तो थोड़ा और जप कीजिए, फिर भगवान को समझ में आ जाएगी। But Krishna is the source of remembrance, knowledge, and forgiveness. लेकिन कृष्ण ही हमारी स्मरण शक्ति के, हमारे भूलने की उसके स्रोत है। When you forget it, then Krishna will give it back. And then he says, don't forget me. अगर हम भूल जाते हैं तो कृष्ण में वापस से याद दिलाते हैं और ये समझाते हैं कि मुझे मत भूलिए। It's described in Bhagavad Gita, chapter 18, verse 15. भगवद गीता के 18वें अध्याय के 58वें श्लोक में समझाया गया है That if we have any difficulties in being Krishna, we will also all difficulties by his grace. उसमें बताया गया कि अगर हम कृष्ण को पुकारते हैं तो कृष्ण की कृपा से हमारे जीवन में जितनी भी कठिनाइयां आ रही हैं वो दूर हो जाएंगी। So our business is to think Krishna, Krishna's business is everything else. तो हमारा एक ही कार्य है कि
कृष्ण को पुकारें और कृष्ण का कार्य हमारे सारे कार्य करें। मैं कार्तिक के मास की ओर महिमा सुनना चाहते हैं और कार्तिक के कथा के साथ साथ इस महीने में कौन कौन सी लीलाएं मैं कैसे समझ सकता हूँ कि कृष्ण ही सब कुछ है। कृष्ण ही सब कुछ है और साथ ही साथ मैं नहीं भी। Krishna is separate, and he maintains his separate existence. कृष्ण अपना एक अलग अस्तित्व संभाल के रखते हैं, Although everything emanates from him. हालांकि हर वस्तु उससे निकलती है। So basically that's it. Basically one thing's that. ये बात एक कहते हैं कि कृष्ण अपने आप को बिल्कुल अलग रखते हैं। We mentioned about Kartik Vrata. हमने कार्तिक मास की महिमा बताई थी। मैं मंदिर में ज्वाइन करना चाहता हूँ, कर्मचारी बनना चाहता हूँ, लेकिन संदेह मन में ये आता है कि अगर मैं अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाया तो पूरा जीवन आगे क्या होगा। People that are outside should not burn their food. तो जो बाहर लोग रह रहे हैं उनको अपने सगे संबंधियों के साथ सारे संबंध खत्म नहीं कर देने चाहिए। Because you never know, you may need their help. क्योंकि आपको नहीं मालूम कभी भी उनकी आवश्यकता पड़ सकती है। Because we should only package Krishna consciousness for their intelligence. तो हमें जो कृष्ण भावना में जो भक्ति है उन्हीं के एहसास को पैकेज करके देनी चाहिए। They have intelligence, you can package it first. They don't have intelligence, और अगर उनमें बुद्धि है तो आप उनको उनके हिसाब से फिलॉसफी को दे सकते हैं। अगर उनमें बुद्धि नहीं है तो प्रसाद से उनको संतुष्ट रखिए। in any case, you can open up. उससे इस तरीके से आप हर परिस्थिति में उनकी मदद कर सकते हैं। You never really know when you're going to give a household. ये आप कभी भी जान सकते हैं कि कभी भी हो सकता है आप दोबारा गृहस्थाश्रम में चले। But this Siddhanta was known as the great astrologer. So sometimes that affection is you must be better. भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज बहुत बड़े ज्योतिष थे, तो कई बार प्रेम से किसी ब्रह्मचारी को पकड़ लेते उनका हाथ लेकर बोलते थे तुम्हें तो शादीशुदा होना चाहिए। So basically, the astrologer knows what is going on. तो ज्योतिष है वो सब जानता है क्या होने वाला है। What is going on for the person. तो वो जान जाते हैं कि इस समय के साथ क्या होगा। You can associate with devotees, but you accept the ashram that you're used to. तो आप भक्तों का संग कीजिए, लेकिन उसी आश्रम का चयन कीजिए जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। मुझे हमेशा एक डर रहता है कि कभी माया के प्रभाव से मैं भक्तों का संग ना छोड़ दूं और मेरे जपमाला भी हाथ से ना चली जाए। तो इस डर से मैं कैसे उठूं? मेरी मदद कीजिए। Fear means you stop fear by stopping seeing the world separate from Krishna. अपने डर से मुक्ति का डर कभी उत्पन्न होता है जब हम इस संसार को कृष्ण से अलग देखते हैं। This is described in 11th canto of chapter 3, verse 38. तो ये भागवतम के 11वें स्कंद के 3 अध्याय के 38 नंबर श्लोक में बताया गया है।
पास भी 2 माला हैं और जो गीतानंद स्वामी जी ने उस पर रख किया हुआ है। तो एक बार एक चोर ने मेरी माला चुरा ली सोचते हुए उसके अंदर पैसा है। तो मैं उसके पीछे भागा लेकिन वो मुझसे ज़्यादा फास्ट था, लेकिन बाद में उसको बहुत बड़ा धक्का लगा होगा उस थैले में माला के पैसे नहीं थे। तो मेरे पास एक दूसरा भी माला है जिससे भी तुम्हारा भी जब किया हुआ था। तो संगीतन जो अपने की बहन ने उन्होंने मुझे मार्केट में मेरे को उतारा। तो मैंने सोचा ठीक है इवनिंग शाम को मैं दोबारा से अपनी माला ले लूँगा। लेकिन जो मेरी माला थी बहन के अंदर ही थी, मैंने सोचा था कि शाम को माला ले लूँगा बहन से, लेकिन जैसे मैं उतरा अगले ही घंटे पे एक्सीडेंट हो गया और मेरी माला खिड़की से बाहर निकल चली। तो एक बार एक सन्यासी की माला हो गई थी, वो प्रभुपाद के पास गए कि मुझे इस नई माला में दोबारा से जप कर दीजिए। बाबा जी ने बताया जिस ढंग से आप अपने ब्राह्मण दीक्षा का धागा चेंज करते हैं और जो नए धागे में युद्धि शक्ति है, इसी प्रकार से अगर आपसे दीक्षा में दी गई माला खो जाती है तो हम नई माला में जब करेंगे तो उसमें भी उतनी ही शक्ति होगी। इस सन्यासी को जो प्रभुपाद जी ने माला दी थी 1966 में दी थी और दोबारा इस सन्यासी प्रभुपाद के पास 1976 में दी। प्रभुपाद ने माला के ऊपर जप करना बंद कर दिया था 1971 से, तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया था। दूसरी बार जब भी बताता था कि मेरी माला खो गई है जप कर दो, तो 1971 के बाद लोगों ने दूसरी बार कमी जाती है। Why sometimes the ones take up with them Sankirtan, some other beings, and keep their initiative fees somewhere else. इसलिए कहीं भक्त ऐसा करते हैं कि अपने जो दीक्षा की माला को संभाल के रखते हैं और कहीं इधर जाए दूसरी माला लेंगे। So they will not lose the prasad of the spiritual. ताकि वो अपने जो गुरु के प्रसाद को कहीं खो न जाए। ये प्रश्न है कि कार्तिक मास में हम किस तरह का उपवास कर सकते हैं और कार्तिक मास में हमें सेवाएं होते हुए भी अपने जप को कैसे बढ़ा सकते हैं। First question is, I mentioned some people eat once a day. मैं हमारा नहीं कुछ लोग केवल एक बार खाते हैं, Some people follow very well, fruits only. कई लोग फलाहारी बाबा बनते हैं, केवल फल खाते हैं, Or some take Mahaprasad of only 2 beans. कई लोग केवल बीटीज का ही महाप्रसाद लेते हैं। Some are under the तो इसे सबका अलग अलग तरीका है, as much as possible. जितना आप कर सकते हैं उतना करिए। You have to think that the last 5 days you have to increase it. और ये ध्यान में रखिए कि आखिरी 5 दिनों में आपको तपस्या और बढ़ानी है। So they need to help their relatives. तो जहाँ आप रहते हैं वहाँ पे आपके जिन लोगों के साथ रहते हैं उनकी आपको सहायता चाहिए होगी ताकि अपने संकल्प को आप पूरा कर सकें। So how can you increase despite evidence? तो दूसरा प्रश्न ये था कि मेरे पास बहुत ज़्यादा सेवाएं हैं तो अपना जप कैसे बढ़ाऊँ। One to go in and win the pro, they're sleeping 4 hours a day. तो एक बार प्रभुपाद से एक वक्त कहा कि वो दिन में 4 घंटे ही सो पाता है। Prabhupada said, sleep 3 hours, but finish your job.
भगवान ने कहा 3 घंटे सोने के बाद जब पूरा करो। So, part of service is तो सभी सेवाओं में सबसे महत्वपूर्ण सेवा है हमारा जप करना, तो इसलिए जप पूरा करना। हम जब में अपनी रुचि खो बैठते हैं और फिर भी हम किसी न किसी तरह से जप कर लेते हैं, हम हमेशा कैसे उत्साहित रह सकते हैं? you chant regularly तो अगर आप नियमित रूप से जप करेंगे with those that have taste. तो उनके साथ जिनके और जप में रुचि है और इससे आपको सहायता मिलेगी। If not, just get them done. और अगर नहीं भी उत्साह आ रहा फिर भी जप करते रहो। We'll think about what to do. उस समय हमें जप की क्वालिटी बाद में सोचेंगे, एटलीस्ट जप तो करते रहेंगे। जब हम तपस्या करते हैं तो हमें लगता है मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मेरा अहंकार बढ़ जाता है अपने आप ही। तो तपस्या करते समय अपने मिथ्या अहंकार को जैसे रोकें। Krishna says in Bhagavad Gita, chapter 9, verse 27, any austerities you perform, do it for me. कृष्ण कहते हैं गीता के 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में कि आप जो भी तपस्या करो मेरे लिए करो। So we're better than some voicing others. तो हमें कृष्ण के लिए तपस्या करनी चाहिए। So we should not have any false ego, तो कोई इसमें मिथ्या अहंकार नहीं करना चाहिए बीच में, because there's somebody better than us, क्योंकि हमसे बेहतर कोई ना कोई जरूर होगा। no matter what it is. कितनी भी तपस्या क्यों ना करे हो, हमसे बेहतर करने वाले बहुत होंगे और ये भी पता नहीं वो कौन होंगे। इसका फर्क नहीं पड़ता कि कौन है वो, लेकिन हमसे बेहतर है We should have any false ego. तो हमारा कोई अहंकार नहीं होना चाहिए। In 7th Canto, chapter 15, verse 23, Narada Muni tells us, 7वें स्कंद के 15वें अध्याय के 23वें श्लोक में नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को बताते हैं। that if an extraordinary concern with the soul, तो उसमें अगर आपको कोई नारद मुनि कहते हैं अगर आपको कुछ अहंकार है तो महात्माओं की सेवा करो। by serving a great soul in the world, तो महात्माओं की सेवा करके महात्माओं के गुण हमारे में विकसित हो जाते हैं। तो अगर कोई हमारे परिवार के बहुत ही निकट व्यक्ति शरीर छोड़ के चले गए तो उस दुख को कैसे हम कम करें? so basically there's a contamination period. तो जब कोई व्यक्ति हमारे परिवार का छोड़ के जाता है तो इस समय एक शुद्धिकरण का एक समय होता है। The Brahmanas is 10 days, Kshatriyas is 15 days, तो ब्राह्मणों के लिए वो 10 दिन है और क्षत्रियों के लिए वो 15 दिन है for the Shudras is 30 days. और शूद्रों के लिए 30 दिन है And I don't know how much that was. और वैश्यों के लिए कितना इसका मालूम नहीं है। But for the Vaishnavas it is really none. और ये वैष्णवों के लिए कुछ भी नहीं है Because the Vaishnava thinks that Krishna will take care of them. क्योंकि वैष्णव ये सोचते हैं कि कृष्ण सब कुछ संभालेंगे Krishna really takes care of his devotees. और कृष्ण निश्चित रूप से अपने भक्तों को बहुत ध्यान रखते It's हैं। Krishna's company policy to take his devotees on auspicious days like Ekadasi or Dhanasya days. तो कृष्ण का ये कृष्ण की योजना भी रहती है कि अपने भक्तों को शुभ दिनों में एकादशी या आविर्भाव दिवस इत्यादि दिनों में अपने पास बुला लेते हैं। He does it all the time. हमेशा ये करते ही रहते हैं। So sometimes I ran into questions that said my non-devotee relative left his body at Ekadasi. तो एक बार मैं क्या रहा था, मुझे मालूम चला कि मेरे एक रिश्तेदार थे जो कि भक्त थे, उन्होंने एकादशी के दिन शरीर छोड़ा। And he said he left because of you. तो उन्होंने मुझे बताया, मेरे मित्रों ने बताया कि आपके कारण उस व्यक्ति ने एकादशी के दिन शरीर छोड़ा। So devotees should always perform devotional service to the Krishna. तो भक्त को हमेशा बस कृष्ण की सेवा में लगे रहना चाहिए और कृष्ण बाकी सब संभाल लेंगे। Maharaj, related to this question,
rule does not apply, but we find Hindu devotion on this rule is this one that counts. In the contaminated state not to enter the temple. So how do we understand? State means like menstrual period. बहुत ही प्रश्न है कि भक्ति के समय सिद्धों में भक्ति के साधना के अनुभव में ये भी है जब कोई दूषित अवस्था में होता है तो उसे मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए क्योंकि महाराज आपने ये बताया कि वैष्णव घर में ऐसे कोई मृत्यु होती है तो उनके ये नियम नहीं लागू होता तो इस बात को कैसे समझें तो महाराज कह रहे हैं कि दूषित अवस्था का अर्थ है जैसे स्त्रियों में मासावाद होते हैं उसको दूषित अवस्था बोला जाता है So it's babies. केवल इसलिए लिखा है Someone dies in the family, then as you were describing from Brahman, Kshatriya, Vaishya, Shudra, it is there in that after the point is there in brackets, this is mentioned what does contaminant state means. And that is a separate point as you were mentioning about babies. This point especially says about contaminant state when there is death in the family. So first temple means the altar or deity worship or the temple area. मुझे प्रश्न पूछा है कि भक्ति के समय सिद्धों में विशेषकर इस बात को लिखा गया है कि अगर किसी की परिवार में मृत्यु होती है तो उसको भी दूषित अवस्था बताई गई है तो मंदिर में नहीं प्रवेश करना उसका क्या अर्थ है कि आतिशगृह के सामने आल्टर में या फिर मंदिर के एरिया में तो महाराज बता रहे हैं कि इसका मुख्य अर्थ है कि टेम्पल हॉल में नहीं आ सकते I asked my Bengali sister about महाराज कह रहे हैं कि मैंने अपनी बंगाली गुरु बहन से पूछा था कि जब उनको मंथली साइकिल्स होते हैं तो कैसे होता है because sannyasis have no क्योंकि सन्यासियों को उसका कुछ भी आइडिया नहीं है कि क्या इसमें परेशानी है She said that it was a vacation, तो उन्होंने कहा कि ये एक छुट्टी के समान है that they'll leave us alone. कि हम हर जगह से अलग रहते हैं You would wash your husband's clothes, you cannot touch the dry stuff. तो हम जो अपने पति के कपड़ों को धो सकते हैं लेकिन जो चीज़ें सूखी होती हैं उनको हम छूते भी नहीं She said they'll leave us alone. हम उन्होंने मुझे बताया कि हम ये कहते हैं कि हमें बिल्कुल अलग छोड़ो Just stay in your room and chant away. हम लोग क्या करते हैं कि बस अपने कमरे में रहे और एक नाम नाम का चल रहा है संत लोग कहते हैं कि हमारे लिए छुट्टी के समान You shouldn't worry about महाराज कह रहे हैं कि हमें मुख्यतः इन बातों में ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए डिवोटी इसकी भक्तों को इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए प्रश्न ये है कि भक्तों के साथ इस संबंध को कैसे बढ़ाया अच्छा किया और हमारा रुचि कभी बढ़ती है और कभी कम होती है भक्ति में तो हमें क्या करना चाहिए जिसका प्रश्न है कि हम कैसे करें हमें भक्तों से अच्छे संबंध बनाने चाहिए क्योंकि ये भक्तों से संबंध बनाना हमें चाहिए कि भक्तों से संबंध बनाए इसलिए हमें भक्तों से अच्छे संबंध बनाने चाहिए we choose our friends when to like. अगर हम अपने मित्रों को इसलिए चुनते हैं कि हम उनको पसंद करते हैं Like attracts like. जो लोग एक ही मानसिकता के होते हैं वो एक दूसरे को पसंद करते हैं Our interest is in भक्ति में हमारे को रुचि बढ़ती है कभी कम होती है हमें क्या करना चाहिए as described in Gunnatar, the anarchist is described in the great
विश्वनाचार्य ने इस अनर्थ को घन तरला बताया है कि कभी भक्ति बहुत ही घनी हो जाती है, कभी एकदम प्रकट हो जाती है। ये सारे हमारी इच्छाओं के अनुसार। तो हम वही करें जिसको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें उतना प्रयास नहीं करना चाहिए जो हमारे कौम से बाहर हो। हम उतना ही करें जो हम कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न ये है कि हम विनम्र कैसे बने। तो पहला कदम तो ये है कि पूर्ववर्ती आचार्यों के चरणों में चले, जिससे हम विनम्र बने। क्योंकि कोई ना कोई हमसे जरूर बेहतर है और हो सकता है हम किसी और से बेहतर हो, तो पूर्ववर्ती आचार्य के बताए रास्ते में जरूर चलना चाहिए। प्रश्न ये है कि क्या हम बलराम जी को बांसुरी को गा सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये ठीक है, क्या बलराम नहीं जानते कि बांसुरी कैसे बजाया जाए। तो इसके बारे में दशम स्कंद के 34वें अध्याय के 24वें श्लोक में कृष्ण बलराम वन में जाते हैं और दोनों ही बांसुरी बजा के अपनी अपनी गोपियों को आकर्षित करते हैं। तो कई बार बलराम जी भी बांसुरी बजाते हैं। तुलसी महारानी की हम कैसे पूजा करें, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए। इसका मतलब है कि बहुत ही प्रगाढ़ सेवा। वो पूरे ब्रह्मांड की माता है, जननी है। अगर आप उनके संतान बनना चाहते हैं तो वो आपकी माता बन सकती है। वो जो बच्चा होता है वो अपनी माता के लिए जितना भी कष्ट कर सकता है करने को तैयार होता है। अपनी माता के लिए कुछ भी करने को तैयार। अगर आपका ये भाव है तब आप तुलसी महारानी की सेवा कर सकते हैं। तो ये भाव कैसे विकसित करें। प्रभुपाद जी ने कहा है कि जो हमारे लाइफ मेंबर्स हैं उनको खाली तुलसी की हम बीज दें। उन्हीं भक्तों को हम तुलसी का पौधा दें जो उसकी सेवा कर सकते हैं। हम अपने क्रोध को कैसे नियंत्रित करें, विशेषकर उन लोगों के प्रति जो मायावादी है, नास्तिक है, जो कि कृष्ण महामृत में और जब में विश्वास नहीं करता। वो एक चुटकुला है कि जो शीशे के घरों में रहते हैं उन्हें दूसरों घर में कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। तो ये स्मरणीय नियम है, हर जगह लागू होगा। दूसरों से वैसे व्यवहार करें जैसा कि आप चाहते हैं दूसरे आपसे व्यवहार करें। हम अपने क्रोध को कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं, उनके प्रति क्रोधित होकर जो भी भक्तों की निंदा करते हैं। तो जैसे गुरु का क्रोध है शिष्य के प्रति या माता पिता का
मनुष्य और अपनी संतान के लिए अच्छा ही सोचते हैं, इसलिए गुस्से का कम से कम इस्तेमाल करते हैं। तो क्योंकि वो अपने हमेशा आश्रित व्यक्ति का अच्छा सोचते हैं, इसलिए वो गुस्से का कम से कम इस्तेमाल करते हैं। और इसको वो बहुत ही कम समय के लिए करते हैं, और फिर हम कम समय के लिए गुस्सा करेंगे तो फिर हम प्रसन्न रहेंगे। अगर हम ज़्यादा गुस्सा करेंगे तो जिस व्यक्ति पे हम गुस्सा कर रहे हैं तो वो सोचेगा कि आपके मन में उसके लिए कुछ द्वेष है। हम अपने कृष्ण भावना को पालन कैसे करें मुश्किल समय में, जब बच्चे हो और साथ आसपास ऐसे लोग हों जो हमें सपोर्ट नहीं करते। भक्तिविनोद ठाकुर जी शरणागति के भजन में 5वें और 6वें श्लोक में बताते हैं। ये शरणागति के श्रृंखला में सबसे प्रसिद्ध भजन है, सबसे उत्तम भजन। तो श्लोक नंबर 5 और 6 में वो बिल्कुल बहुत ही एक जमीनी स्तर की बात करते हैं। ऐसा करें कि भगवान आपकी सेवा में जो दुख है वो मेरा सबसे बड़ा सुख है। चाहे मुझे अच्छा लगे या बुरा लगे, ये दोनों ही आपकी सेवा में मेरे मोह का नाश करते हैं। हमें कृष्ण भाव का पालन करने के लिए हर स्थिति में दृढ़ रहना चाहिए। जब परिस्थितियाँ मुश्किल होती हैं तो जो सही लोग हैं वही इसका पालन कर सकते हैं। तो अगर आसपास बच्चे हों और ऐसे लोग हैं जो आपको तंग कर रहे हैं तो अच्छा उदाहरण स्थापित कीजिए। तो जब की एक संख्या है और जब की गुणवत्ता है, इसके विषय में बताइए। व्यवस्था में तो जबकि संख्या कोई हो ये निश्चित रूप से बेहतर है। ये निर्भर करता है कि आप किस स्थिति में हैं। तो जो पुराने लोग हैं उनके लिए जो जबकि क्वालिटी है वो क्वांटिटी से ज़्यादा इसका महत्व है, क्योंकि जो बूढ़े लोग हैं वो ज़्यादा आहार में नहीं ले सकते। तो ये कहा जाता है कि जो माताएं हैं वो आपको स्तनपान कराएंगी, लेकिन आपके लिए एक्सरसाइज नहीं करेंगी। बाबा जी कहते थे कि जो युवा हैं वो बहुत कम नहीं खा सकते और जो वृद्ध हैं वो ज़्यादा नहीं खा सकते। प्रश्न ये है कि इस मास में मैं अपने गुरु को कैसे प्रसन्न करूं? तो हम गुरु को पसंद कर सकते हैं शास्त्रों का पालन करके। कृष्ण प्रसन्न है तो गुरु प्रसन्न है। किस एकादशी का ज्यादा महत्व है, पांडव निर्जला एकादशी का कि कार्तिक मास की एकादशी का? जो एकादशी व्रत का पालन करते हैं उनके लिए हर एकादशी एक समान है।
शुरू कर देते थे कोई भी एकादशी अच्छी। लक्ष्मी जी की पूजा कैसे करें कार्तिक मास में? There's a bunch of Lakshmi Shan. एक शन है जिसका नाम है लक्ष्मी शन। लक्ष्मी जी के दाएं हाथ में शन होता है। हम उस शन की पूजा कर सकते हैं। ऊर्ज व्रत क्या होता है? इसको पहले किसने रखा था? हम इसको कैसे पालन कर सकते हैं? ऊर्ज व्रत कार्तिक मास का एक दूसरा नाम है। ये भी बताया जा सकता है सबसे पहले इसने किसको रखा था? काम से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से सम्मोह उत्पन्न होता है, तो इस सम्मोह से किस प्रकार बचा जाए? मोह का अर्थ है वो जो कि नहीं है। जो देखा जाए तो हम हमेशा ही सम्मोहित रहते हैं। तो ये निर्भर करता है कि आप कौन से मोह में रहना चाहते हैं, योग माया के मोह में कि महामाया के? कई बार इन दोनों में होते हैं। कभी हम महामाया में होते हैं, कभी किसी ना किसी माया में होते रहना है। तो ये कैसे इससे हम छुटकारा पा सकते हैं? तो इससे इस मोह से बाहर आने का एक तरीका है कि जो कृष्ण के लिए भक्ति के अनुकूल है उसे His bhajan, the truth, Shan, bhajan, meditation, which Sharanagati and Tata. भक्तिवेदांत ठाकुर जी के भजन लिखते हैं शरणागति और किताबें के मंदिर में। Ashram, Chasi, या शुभ हो या अशुभ हो, it's good, it's bad, it's good or bad. चाहे शुभ हो या अशुभ हो, दोनों को ही त्याग कर दो। What is favorable for Krishna, just do that. जो कृष्ण की सेवा के अनुकूल हो उसको करो। If they tell you it's right, आज जो है प्रसन्न है, कैसे मालूम चलेगा? तो ये मालूम चलेगा कि ये चीज पुजारी को बताएंगे। sometimes the Lord tells the Jari, कई बार जो वास्तविक है वो पुजारी को अलग बातें बताते हैं। the Jari chose to try to satisfy the people. तो वे जो पुजारी दोबारा से प्रयास करते हैं वास्तविक को प्रसन्न करने का। If you give the Sharanagati alongside of the people, Krishna will tell you. अगर हम अश्विग्रह के चरणामृत और महाप्रसाद को सबको बांटते हैं तो अश्विग्रह हमारे अस्तित्व को सहन कर लेते हैं। सेवा करते हुए अपराध तो हो ही जाते हैं। Whatever has to be done. भक्तों को कैसे प्रसन्न किया जाए, जो भी भक्तों के लिए अनुकूल हो वो करना चाहिए अपनी योग्यता के अनुसार। मानसिक अपराधों से कैसे बचा जाए, इसको सकारात्मक बनाइए। इससे फर्क नहीं पड़ता सेवा अपराध, वैष्णव अपराध, नाम अपराध, काम अपराध, It's a bad result. ये हमारी बुरी मानसिकता है।
कम होगी अगर हमारी मानसिकता बदलती है। तो महाराज कह रहे हैं, सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने प्रश्न पूछे और हम परिक्रमा करेंगे। हरण